Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friend, in this video we will discuss when all IT companies again going to hire for the freshers batch, and also we will discuss some important things you should know if you are currently employed in any of the company, and if you want to join and if you're ready to join the any of the company listed over on my video thumbnail. So let's start with the particular video. So first of all, we will discuss when all IT companies again going to start for the freshers batch. So basically, as you all know that Infosys currently recruiting the DSC SP role, okay, in the December month, and system engineer role you can expect in the month of January for the same. Okay, so Infosys you can expect in January month, okay, Infosys. Okay, then after the company coming over, there is Cognizant. So basically Cognizant is still not declaring the hiring update for the Gen Z patrol, because previously I created one separate video. In that particular video I discussed that Cognizant is currently hold all the Gen Z recruitment because they have lots of candidates still pending for their onboarding. Okay, so you can't expect in the month of January they will hire, but most probably in February end or March you can expect the hiring from the Cognizant team. Okay, and Cognizant done. Okay, Infosys also done. Okay, and then after company coming from over, there is Accenture. Okay, so basically Accenture is currently recruiting, but they're not accepting the application, and also they are not sending the exam mail. So Accenture is also going to recruit in the month of Jan end, or you can say Feb Jan end you can expect. Okay, because currently they hiring, but they're not sending any exam link for those candidates who are applied. And some day ago they sent one mail that you are in the wait for your exam mail, something like that. They are sending mail. Okay, but right now they're not conducting any exam. Whenever they are going to start conducting exam, then I will definitely going to tell each in every points whenever they are going to start. Okay, and Deloitte currently hiring for the batch of 23, as you all know that, and for the other batch they will start hiring in the upcoming months. Okay, depending upon their business requirement. IBM currently hiring for the software engineer role, associate system engineer role, and associate technical engineer role. And right now, not each and everyone is going to receive the exam link, but whenever they are going to start bulk hiring, in which each and everyone is going to get the exam link. But currently there is no particular update, so you can expect in the same in the January end, or you can say February. Mindtree, as you know that Mindtree and LTI both are combined, and currently they are not recruiting. LTI hiring for the Spark hiring for the batch of 2022 and 2021, and Mindtree is currently not recruiting, and Mindtree also going to recruit in the month of January, or you can say February or March. Okay, because currently Mindtree and LTI both are combined, and they will going to start hiring for the combined. Okay, Accenture done. TCS currently they are not going to hiring because they are currently not conducting the exam of the ITP. So whenever they are going to start hiring, they will first complete their ITP exam. Then after they will start hiring for the batch of Ninja, for the batch of 2022 2023, for the role of Ninja and Digital. But right now, first of all, they will conduct ITP exam. You can expect the ITP exam in the month of February or January, and you can expect. And after that, after completing ITP exam, then only they are going to hiring. But paid NQT is already going on. If you want to pay the money for the TCS NQT exam, you can pay, but make sure you are preparing very well, because not each and everyone is going to give the interview mail. because recently काफी लोगों ने एग्जाम लिखा था पेड एनक्यूटी का. मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ सभी के पास आया है. एक से दो लोगों ने मुझे डीएम करा कि सर आई गॉट इंटरव्यू मेल फ्रॉम द टीसीएस टीम रिटर्न पेड एनक्यूटी एग्जाम ऑन अक्टूबर मंथ. तो नॉट ईच एंड एवरीवन गोइंग टू एग्जाम गेट द एग्जाम, बिकॉज टीसीएस जब हायरिंग करेगी तो खुद फ्री एनक्यूटी लेगी, पेड एनक्यूटी क्यों ही लेगी, है ना. कैपजेमिनी का बता दो फ्रेंड. कैपजेमिनी जो है दो रोल के लिए हायरिंग करती है, एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट. आपको पता होगा फ्रेंड, अभी फिलहाल कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आने वाली है, और जनवरी में भी आप लोग सेम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. न्यू ईयर में आप लोग न्यू हायरिंग देखने को मिलेगी. मोस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पर न्यू ईयर में न्यू हायरिंग करेगी. ओके, एम्फोसिस का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हायरिंग करेगी. अभी जो करंटली रिक्रूटमेंट कर रही है बल्क हायरिंग नहीं है, लिमिटेड हायरिंग है. तो जिन लोग का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा उनके पास रिक्रूटमेंट देखने को आ रहा है. ज्ञानपेट भी आपका सेम फ्रेंड. हेक्सावेयर करंटली जो रिक्रूटमेंट कर रही है वो टॉप टियर कॉलेज वालों को कर रही है फॉर द बैच 23 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और प्रीमियर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग. ये दोनों जो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है वो अभी फिलहाल टॉप टियर कॉलेज के लिए आने वाले मंथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा. टेक महिंद्रा भी जो यहाँ पर हायरिंग जो कर रही है वो आपका Naukri.com से हायरिंग कर रही है. डाटा आपको रिज्यूमे सेंड करना पड़ता है एचआर टीम को. तो ये आपका कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये आपका एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर जो रिक्रूटमेंट करती है टेक महिंद्रा, वो हायरिंग नहीं है. और ये भी हायरिंग आपको जनवरी फरवरी में ही देखने को मिलेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी फरवरी में आप लोग मोस्ट ऑफ द कंपनीज गोइंग टू बी हायर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी. एसीएल टेक हायरिंग कर रही है, जो आई थिंक वो पेड वाला है. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट हाँ एसीएल हायरिंग कर रही है. बहुत सारे रोल के लिए हायरिंग कर रही है, बट वो आई थिंक एसीएल टेक्नोलॉजीज है, एसीएल नहीं है. ठीक है, एसीएल टेक्नोलॉजी में आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है. आई थिंक यस.
ओके और इन्फोसिस मैंने बता दिया आप लोग को। विप्रो जो है अभी करेंटली विप वालों को हायरिंग कर रही है और इसका जो एलिया टर्बो है वो भी आप लोग को नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर ये रहा आपका फिर हायरिंग को लेकर, और मैं इसका फिर पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर। ये मैं पार्ट वीडियो में 2 में छोड़ता हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा बन चुका है। ठीक है, नहीं छोड़ो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में और भी टाइम लगेगा। ठीक है, देखो अब हर एक कंपनी की मैं बात करूँ, फिर हर एक कंपनी जिस भी कंपनी में कभी काम कर रहे हो तो इन सैलरी जो फिर इंक्रीमेंट होता है वो 2 केसेस पे होता है। पहला आपका होता है इफ यू आर कंप्लीटिंग योर 1 ईयर, तो जिन लोग भी, अगर आप लोग करंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपका कंप्लीट हो चुका 1 ईयर, तो फिर आपका जो है अराउंड डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये जो रेंज आपका होता है वो 6 से लेकर 12 और 13% तक का होता है। ये आपका बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का इंक्रीमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस बेस और प्रोजेक्ट बेस, वो अलग इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपका 1 साल का आपका होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी इसी बीच में लाई करती है, 6 to 13%, किसी में 40% होते हैं, किसी में 16% होते हैं, वो डिपेंड करता है। बट एवरेज ऑन एन एवरेज केस 16 to 13% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। दूसरा आपका होता है, अगर आप लोग कंपनी में काम करते हो तो आपको कुछ अलग से असेसमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो आप लोग। और ऑल्सो अगर आप लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, 1 साल का आपका एग्रीमेंट तो मैंने बता दिया आप लोग को। दूसरा कंडीशन आपका होता है कि मान लो आप लोग किसी प्रोजेक्ट में, मान लो आप लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो डेल के, मतलब कि आप लोग मान लो इन्फोसिस में हो, इन्फोसिस में आप लोग काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, तो ये अगर आप लोग प्रोजेक्ट में हो और आपका कोई इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, अगर आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें भी आपको जो है आपका रोल अपग्रेड हो जाता है। आपको यहाँ पर रोल अपग्रेड मिलता है ओनली इफ यू आर करंटली इन ए प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो इफ योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तब आपको रोल अपग्रेड मिलता है। और रोल अपग्रेड मिलने के बाद फिर आपको फिर सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब कि वो 2 तरह के सैलरी इंक्रीमेंट मिलते हैं। पहला आपका हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, एंड ऑल्सो इफ यू आर करंटली इन अ प्रोजेक्ट, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट सम इंक्रीमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस इन योर प्रोजेक्ट, है ना। और ये परफॉर्मेंस जब आपका बढ़ता है और 1 साल का आपका रोल भी अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर हो, एसोसिएट सिस्टम एनालिस्ट हो गया, तो आपका रोल अपग्रेड होता रहता है। मान लो कि आपका करियर लेवल 12 है तो आपका 11 हो जाएगा। इन्फोसिस में मान लो आपका 10 है, 8 है तो आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपका बढ़ता रहेगा, डिपेंड करता है ये परफॉर्मेंस के ऊपर में और प्रोजेक्ट के ऊपर में। लेकिन 1 साल का जो बाय डिफॉल्ट आपका तो होगा ही। और अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट आपका जो सैलरी जो इंक्रीज होता है, मतलब कि आपका रोल अपग्रेड बाय डिफॉल्ट, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मतलब किसी कंपनी में 2 साल में बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट, मतलब आपका रोल अपग्रेड बाय डिफॉल्ट, मतलब आप प्रोजेक्ट में हो या मत हो, डजंट मैटर। बट इफ यू कंप्लीटिंग योर बाय डिफॉल्ट 2 ईयर ऑफ एनी ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफली यू आर गोइंग टू गेट योर रोल अपग्रेड। प्रोजेक्ट में हो तो भी बढ़ेगा, नहीं हो तो भी बढ़ेगा। ठीक, मान लो प्रोजेक्ट में हो, आपका काम अच्छे से नहीं हो पाता है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको परफॉर्मेंस पे आपको नहीं मिलेगा रोल अपग्रेड। बट हाँ, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपको मिलेगा देखने को। 2 साल सेव अप, बहुत सारी कंपनी 1.5 साल फॉलो करती है, बहुत सारी कंपनी 2 साल फॉलो करती है। जैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट 1 साल में होता है ना बाय डिफॉल्ट, वैसे ही आपका रोल भी अपग्रेड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये रहा अपन काफी कुछ आज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा भी मैंने कुछ डाउट था तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात पता होना चाहिए फिर न्यू ईयर में न्यू हायरिंग आने वाली है, और जो मैं बताया आपको इंक्रीमेंट को लेकर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी क्वेरीज आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो प्लीज आप लाइक कर दें। काफी मैंने अच्छे तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करा है, काफी शांत तरीके से रिकॉर्ड करा है। हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।